Good morning, children. Welcome to your biology class. Dear students, as you know, corona cases are increasing day by day. So please take care of your health as well as your family members. So dear students, we are discussing diversity in the living world, and in our previous video we have discussed kingdom Animalia, and we have covered phylum Porifera and Coelenterata in our previous video. So we are going to discuss some more phylum of kingdom Animalia. So our next phylum is Platyhelminthes. The word platy means flat. यहाँ पे जो platy word है इसका मतलब है flat. Helminth means worm. So Platyhelminthes का मतलब क्या हो गया बेटा? Flat worm. Platy means flat. Helminths means worm. So the meaning of Platyhelminthes is flat worms. So इस phylum में कौन से animals आते हैं? सारे flat worms. Okay, so they are bilaterally symmetrical. You know, if we cut the body of the organism from one single lateral plane, it will divide into two equal half, and that is bilateral symmetry. So they are bilaterally symmetrical. Okay, they have blind sac body plan. They are endoparasite. Endo means inside, so they lives inside the body of host. Few of them are free living, which do not live inside the body of host. Their body is leaf like or ribbon like. Okay, their body is dorso-ventrally flat. आपके आई कार्ड का जो रिबन है बेटा वो आगे और पीछे दोनों जगह दोनों साइड से फ्लैट होता है. बिल्कुल ऐसे ही ये जो वॉर्म्स हैं इनकी बॉडी भी फ्लैट होती है. एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल. ओके, जो पैरासिटिक फॉर्म है, जो पैरासिटिक फ्लैट फॉर्म्स है, दे हैव सकर्स और हुक्स. उनके माउथ में सकर और हुक्स हैं. किसके लिए? फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, ताकि वो खुद को अपनी बॉडी को होस्ट की बॉडी के साथ जो है वो अटैच कर सकें. ओके, पैरासिटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट. ओके, एंड इफ दे हैव their digestive system, it is incomplete with one single opening which act as mouth and anus. Now their excretory system is consist of flame cells. This is important question, okay, which is asked very frequently. Flame cells are the excretory organ of which phylum? So flame cells are used by Platyhelminthes for excretion. What is excretion? Removal of waste from the body is known as excretion. Okay, so their nervous system is in the form of nerve ring और nerve codes के फॉर्म में होता है. जैसे आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम नर्व रिंग्स का और नर्व कोड्स का नर्व कोड से बना हुआ होता है बेटा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है. मोस्टली दे आर हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल. इट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Both the sex organ are present in the same body. जब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल. दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. व्हाट डज इट मीन्स? अगर उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट हो गया तो उस कट पार्ट से पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है. ओके, रीजनरेशन वो मेथड है जिसमें बॉडी के कट पार्ट से या तो कोई ऑर्गन डेवलप हो सके या कंप्लीट बॉडी डेवलप हो सके. सो दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स विच हेल्प देम इन मूवमेंट और एंड सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है उनकी बॉडी में और सेंस ऑर्गन नहीं है. एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट फॉर्म, टेप फॉर्म. टेप फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट फॉर्म. लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक इज एन एग्जाम्पल ऑफ flat forms. They belongs to Platyhelminthes. This is Planaria. ये Planaria है which has high regeneration power, and this is tapeworm. ये tapeworm है बेटा. It is found in your intestine also. Next is Eschyhelminthes. तो देखिए एस्की वर्ड का मतलब क्या होता है? राउंड. और हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? वर्म्स. सो एस्कीहेलमिंथेस का मतलब क्या हो गया? राउंड वर्म्स. दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रेड वर्म्स. ओके, mostly they are parasitic living in the body fluids of the host. okay, host की body के अंदर body fluids में रहते हैं ये. their body is long and cylindrical or you can say thread like. they are also bilaterally symmetrical. they are pseudocoelomate. ये pseudocoelomate है बेटा. Platyhelminthes कैसे थे? acoelomate. जो बॉडी कैविटी थी वो Platyhelminthes में एब्सेंट थी.
एस्की हेलमिंथिस से पहले आप जितनी भी फाइलम पढ़ेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथिस, ऑल दीज आर एसिलोमेट, दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी। आपकी फाइलम एस्की हेलमिंथिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज निमेटोडा एक ऐसी फाइलम है जिसमें आप सूडोसिलोमेट एनिमल्स पढ़ेंगे। ओके, दे हैव कैविटी इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। ओके, they have longitudinal muscles but circular muscles are absent and excretion takes place in their body with the help of प्रोटोनेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। जैसे आपकी बॉडी में वेस्ट को रिमूव करने के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं बेटा? यू हैव किडनीज। ओके, प्लैटीहेलमिंथिस में आपने क्या पढ़े? फ्लेम सेल्स। और एस्की हेलमिंथिस में क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, they also have nervous system which has nerve rings. Okay, sexes are separate. आपके प्लैटीहेलमिंथिस कैसे थे? प्लैटीहेलमिंथिस आपके hermaphrodite थे, both the sex were present in the same organism. बल्कि यहाँ पे एस्की हेलमिंथिस में, निमेटोडा में sexes are separate. Okay, they are unisexual. One sex is present in one organism. Male is different, female is different. Okay, so this is also known as sexual dimorphism. ओके, मेल एस्कैरिस इज शॉर्टर देन फीमेल। फीमेल की जो लेंथ है ना बेटा वो ज़्यादा है और मेल एस्कैरिस की लेंथ है ना वो शॉर्ट है। डायग्राम में अभी आपको दिखाई देगा। ओके, सो एग्जाम्पल कौन से हो गए? एस्कैरिस, एस्कैरिस राउंड फॉर्म है। सेकेंड है विचूरिया। विचूरिया इज इम्पॉर्टेंट। विचूरिया से कौन सी डिजीज होती है? एलिफेंटियासिस, जिसमें लोअर बॉडी के लिम्स, लोअर लिम्स की जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और एलिफेंट जैसा फुट हो जाता है। जैसा भारी पैर एलिफेंट का होता है बिल्कुल वैसा। सो अगर कोई यहाँ आपसे पूछे एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, तो आंसर आएगा विचूरिया। एंड विचूरिया बिलोंग्स टू निमेटोडा। विचूरिया किससे बिलोंग करता है? विचूरिया बिलोंग्स टू निमेटोडा एस्की हेलमिंथिस विच कंसिस्ट ऑफ राउंड वॉर्म। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एस्कैरिस है, तो यहाँ पे देखिए दो वॉर्म दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल, है ना। सो फीमेल की जो साइज है वो लार्ज है कंपेयर टू मेल। नेक्स्ट फाइलम है आपकी एनिलिडा। एनिलिडा वर्ड का मतलब है रिंग वॉर्म्स। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आपको याद आया होगा अर्थवॉर्म, क्योंकि अर्थवॉर्म की बॉडी पे क्या होती है बेटा? रिंग्स होती हैं। सो एनिलिडा फाइलम में जो वॉर्म्स हैं दे आर कॉमनली नोन एज रिंग वॉर्म्स। मोस्टली आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर पैरासिटिक। ओके, अर्थवॉर्म आपको पता है कैसे रहता है? ओके, दे बरो इन द सॉइल। सॉइल के अंदर बरो बनाते हैं, मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिलते हैं। देयर बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड दे आर सिलोमेट। एस्की हेलमिंथिस के बाद अब आप जितने भी फाइलम पढ़ेंगे उन सब में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे दे आर सिलोमेट, दे हैव बॉडी कैविटी। इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप याद रखिए बेटा, एस्की हेलमिंथिस से पहले वाले सारे आपके क्या है? एसिलोमेट। एस्की हेलमिंथिस इज सूडोसिलोमेट और एस्की हेलमिंथिस के बाद जितनी भी फाइलम आएंगी आपकी ऑल आर सिलोमेट। ओके, एनिलिडा में जो रिंग वॉर्म्स आते हैं देयर बॉडी इज सॉफ्ट, एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन? इंटरनल सेगमेंट्स मैचेस विद एक्सटर्नल सेगमेंट। They have complete digestive system. What does it mean? They have two opening, one mouth and the another one is anus. Mouth is for ingestion and anus is for egestion, removal of undigested waste, and mouth is for intake of food. Okay, now this is again important question. In Annelida, locomotion, movement takes place with the help of setae, parapodia or suckers. Okay, they also have longitudinal and circular muscles which help them in movement, which help them in locomotion. This is again an important question. Longitudinal and circular muscles are the locomotory organ of which phylum? They are the locomotory organ of phylum Annelida. Respiration occurs by body surface. Gaseous exchange occur by the body surface. Their body is moist, so which help them in gaseous exchange, exchange of oxygen and carbon dioxide. Excretion, removal of waste takes place with the help of nephridia. Circulatory system is of closed type. Circulatory system closed type का है। इसका मतलब क्या है? हार्ट ने ब्लड को पंप किया एंड ब्लड जो है वो ट्यूब्स के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचा, बॉडी के सेल्स तक पहुंचा, वो है क्लोज्ड टाइप। डायग्राम है, आपको समझ में आएगा। ओपन क्या है? ओपन होता है कि सिर्फ हार्ट ने ब्लड को पंप किया
और वो विदाउट पर्टिकुलर ट्यूब्स के थ्रू जा रहा है, डायरेक्टली वो बॉडी के सेल्स में जा रहा है, और क्लोज टाइप में वो ट्यूब्स के थ्रू जाएगा. ओके, सो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग और गैंग्लियन, नर्व कॉर्ड. मोस्टली दे आर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मीनिंग आपको पता चल गया. मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिज्म. सो योर अर्थवॉर्म इज बाइसेक्सुअल. मॉनसून सीजन है, रेनी सीजन है, अभी आपको बहुत सारे अर्थवॉर्म दिखाई देंगे. सो अर्थवॉर्म आर बाइसेक्सुअल and some of them organisms, some of the annelids are unisexual also. They are ectoparasite. Ecto means outside. They live on the body of the host. Endo means inside. अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है तो उसको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं बेटा. अगर पैरासाइट बॉडी के ऊपर रहता है वी कॉल इट एज एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल हो गया लीच विच सक आवर ब्लड, जो हमारे ब्लड को सक करती है. तो इसके एग्जाम्पल हो गए नेरिस, अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है? फेरिटीमा. फेरिटीमा इज द साइंटिफिक नेम. लीच. ओके, लीच भी एग्जाम्पल है एनीलिडा का. तो यहाँ पे देखिए मैंने नेरिस का ये डायग्राम है एंड दिस इज योर अर्थवॉर्म. और ये देखिए यहाँ पे लीच कैसे ब्लड सक करते हुए दिखा रहे हैं, है ना. और यहाँ पे देखिए आपको सर्कुलर मसल्स दिखाई देंगे. ये सर्कुलर मसल्स हैं मूवमेंट के लिए, ये सीटें हैं लोकोमोशन के लिए, है ना. ओके, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा. और ये पेयर्ड ऑफ गैंग्लियन सेल्स हैं. दीज आर द पेयर ऑफ गैंग्लियन सेल्स. ये अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम है. ये ट्यूब्स आपको देखिए, ये इसका हर्ट है यहाँ पे, और ये देखो इसकी ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं बेटा. आर्थ्रोपोडा. आवर नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स. सो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या हो गया? जॉइंटेड लेग्स. ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इस अर्थ के ऊपर ज़्यादातर जो एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, है ना. ज़्यादातर कौन से एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी वैरायटी के इंसेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं. देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स. सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ओके, आर्थ्रोपोड आर सोलिटरी. सिंगल रहते हैं. सिंगल रहने का मतलब है दे लिव अलोन. एक ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, और दे लिव इन कॉलोनी. कॉलोनी में बेस्ट एग्जांपल जो बचपन से आप स्टोरी सुनते आए होंगे, हमारी तरह कॉलोनीज में कौन रहता है, ग्रुप में कौन रहता है, फैमिली की तरह? आंट्स. चींटियाँ रहती है ना बेटा. मोस्ट आर फ्री लिविंग. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्री लिविंग भी रहते हैं. दे आर ओमनी प्रेजेंट. गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. हर जगह गॉड प्रेजेंट है. वैसे ही आपको आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट लार्जेस्ट फाइलम है तो मोस्टली हर जगह मिल जाएंगे बेटा. दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. ये मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है. बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस क्यूटिकल. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. Exoskeleton is made up of cuticle. Their body has covering of chitin. Okay. They also undergo molting for their body growth. Their body is divided into head, thorax and abdomen. में उनकी body divided है. Okay. आर्थ्रोपोडा में क्या प्रेजेंट होते हैं? लेग्स प्रेजेंट होते हैं क्रॉलिंग के लिए, क्रिपिंग के लिए, वॉकिंग के लिए. और फ्लाइंग के लिए क्या होते हैं? फ्लाइंग के लिए उनकी बॉडी में विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. So their digestive system is complete with two opening, mouth and anus, and it is divided into foregut, midgut and hindgut. Okay, their mouth parts are evolved and they are used for biting, chewing and sucking. जैसे आपका मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा है, फीमेल मॉस्किटो, तो सकिंग टाइप का माउथ है उसका. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन टाइप है. ये देखिए कंफ्यूज मत होइए. एनीलिडा का कैसा था? क्लोज्ड. और इनका कैसा है? ओपन टाइप. ओके, ब्लड फ्लो इन ओपन साइनसेस. ओपन कैविटीज में जो है वो फ्लो कर रहा है ब्लड आपका. बेट्स द ऑर्गन विच बेट्स द ऑर्गन. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है. ब्लड डायरेक्टली फ्लो कर रहा है हर्ट के बाद. रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू भी होता है. एक्वेटिक होंगे इंसेक्ट्स तो उनमें गिल्स के थ्रू होगा. जैसे सिल्वर फिश. सिल्वर फिश ना समझे आप सिल्वर फिश को बेटा. सिल्वर फिश बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. तो उसमें जो भी रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा. ट्रेकिया जो आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं उनमें ट्रेकिया के थ्रू होगा. बुक लंग्स के थ्रू होगा और बुक गिल्स के थ्रू. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स विच इज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. एक्सक्रीशन यहाँ पे
किसके थ्रू है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब तक आपने डिफरेंट फाइलम्स में पढ़ा था, प्लेटीहेलमिन्थस में फ्लेम सेल्स पढ़ा आपने, एस्कीहेलमिन्थस में प्रोटोनेफ्रीडिया, एनीलिडा में आपने नेफ्रीडिया पढ़ा। और यहाँ पे देखिए आप आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो मेल्फिजियन ट्यूब्स के थ्रू हो रहा है। नर्वस सिस्टम जो है अगेन नर्व रिंग से बना हुआ है। ओके, सो दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। अब तक आपने सेंस ऑर्गन नहीं पढ़े थे, तो दे हैव सेंस ऑर्गन, एंटीने, कंपाउंड आई एंड टेस्ट रिसेप्टर्स। ओके, sexes are separate, so they show sexual dimorphism. Male are different, female are different. Animals are oviparous and fertilization is internal. What is the meaning of fertilization is internal? It means fusion of male and female gamete takes place inside the body. And what is the meaning of oviparous? Oviparous means they lay eggs, वो egg lay करते हैं. Okay, and जो यंग वन को बर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। सो जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जैसे आपने ह्यूमन में देखा होगा कि जो यंग वन बॉर्न होता है वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा होता है, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म को एडल्ट में ग्रो होने से पहले डिफरेंट फॉर्म्स से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपने सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल पढ़ी है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी है। ओके, सो जब एडल्ट में ग्रो होने से पहले ऑर्गेनिज्म डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में चेंज होता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे, इंसेक्ट्स में देखिए आपके हनी बी हो गए, बटरफ्लाई हो गए। ओके, इन हनी बी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन जो नेक्स्ट जनरेशन आती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो यहाँ पे उस फ्यूजन के बिना ही जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हनी बी की, वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू आ रही है। ओके, आर्थ्रोपोड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे हनी बी आपको पता है हनी के लिए, और जो बी वैक्स आता है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड। सिल्क वॉर्म आपको पता है सिल्क के लिए, लॉबस्टर, प्रॉन, क्रैब्स, है ना, ये सारे लॉबस्टर भी जो वी आर ओमनीवोर्स, तो लॉबस्टर्स भी कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जो लॉबस्टर, प्रॉन और क्रैब को एज अ डाइट में इंक्लूड करते हैं, इन पे फीड करते हैं। सम आर्थ्रोपोड आर हार्मफुल फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो विच सक अवर ब्लड। और मॉस्किटो में मेल एंड फीमेल में से कौन ब्लड सक करता है बेटा, फीमेल मॉस्किटो। सेंटीपीड्स, स्पाइडर, कॉकरोचेस, ओके, दीज ऑल आर हार्मफुल फॉर अस। सो एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, क्रैब, ग्रास होपर, आंट्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। सो देखिए आर्थ्रोपोडा की बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड, तो ये हमारा भी हेड है। थॉरेक्स कौन सा रीजन होता है, जहाँ आपके लंग्स वगैरह सिचुएटेड है, और लंग्स के नीचे वाला जो पार्ट जहाँ पे आपका स्टमक, लीवर है, दैट इज एब्डोमेन। तो इसी तरह इनकी बॉडी भी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फोरगट, मिडगट और हिंडगट में था। ओके, इस तरीके से डिवाइड था। ये मैंने आपसे कहा था कि क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट ने ब्लड पंप किया है, और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जिसके थ्रू आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक, ऑर्गन्स तक ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओपन में क्या होता है, हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया और वो डायरेक्टली स्पेसेस में जा रहा है, डायरेक्टली स्पेसेस में जा रहा है जैसे। ओके, यहाँ पे देखिए कोई ट्यूब्स नहीं है, और यहाँ पे आपको पूरी बॉडी में ट्यूब्स का नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। ओके, दिस इज मेटामॉर्फोसिस, एक लाइफ फॉर्म से दूसरी लाइफ फॉर्म में चेंज होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग था, एग हैच हुआ, लार्वा आया, लार्वा के बाद नेक्स्ट स्टेज, लार्वा ने खुद को जो है वो कुकुन के अंदर बंद किया, वो पीपा बना, और एडल्ट जो है वो कहाँ से डेवलप हुआ, पीपा से। सो दिस इज मेटामॉर्फोसिस और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यू कैन से। ओके, बिफोर ग्रोइंग इनटू एडल्ट फॉर्म ऑर्गेनिज्म गो थ्रू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। तो मोलस्का में कौन से एनिमल्स आते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फर्स्ट
लार्जेस्ट फाइलम कौन सी थी बेटा? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड कौन सी है? मोलस्का। दे आर फ्री लिविंग, some are sedentary, mostly marine, some are marshy, some are found in marshy areas also. They are bilaterally symmetrical. They, okay, some are asymmetrical also, like the snails which have shells, they have dots in their shell is coiled, so due to that coiledness they are asymmetrical. Okay, mostly they are bisymmetrical. Asymmetrical बहुत कम मिलेंगे आपको. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास. अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगा. ओके, विसरल मास इज एनक्लोज्ड इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ देयर बॉडी वॉल विच वी कॉल एज मेंटल. सो मेंटल सिक्रीट हार्ड कैल्केरियस शेल. ठीक है, मेंटल क्या सिक्रीट करती है? हार्ड कैल्केरियस शेल. कैल्केरियस शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. आपने शेल देखी होगी, एंड दैट शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. Okay, mollusk feed on plant and animal matter. Locomotion is by foot. Okay, and their foot is modified for burrowing and swimming, क्योंकि aquatic है तो वो swim करेंगे. Digestive system is well developed with 2 openings. Buccal cavity has a long tongue-like organ. Okay, their buccal cavity has a tongue-like organ, and that is rasping organ. This is important. रेड्यूला इज प्रेजेंट इन विच फाइलम? रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन. ध्यान से सुनिए यहाँ पे, रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, टंग लाइक ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन मोलस्का. ओके, इट ऑल्सो हैज टीथ. मोलस्का में शो लंग्स. एक्वेटिक दे रेस्पायर थ्रू लंग्स. एक्वेटिक मोलस्कस हैव गिल्स. ओके, वी ऑल्सो कॉल देम एज टीनिडिया. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका ओपन टाइप है. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? ओपन टाइप. अभी क्लोज किस में पढ़ा था आपने? एनिलिडा में. आर्थ्रोपोडा में भी ओपन है, मोलस्का में भी ओपन है. ओके, ब्लड कंटेन्स ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट. आपकी बॉडी में कौन से कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? रेड कलर का. लेकिन जो मोलस्का हैं उनकी बॉडी में किस कलर का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? ब्लू कलर का. और ब्लू कलर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? साइनिन. सो हीमोसाइनिन. हीमो का मतलब ब्लड में प्रेजेंट है, साइनिन मतलब ब्लू कलर का है. ओके, देयर एक्सक्रीशन अकर्स बाय किडनीज. देयर नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ गैंग्लिया. दे हैव सेंस ऑर्गन, आईज, टेंटिकल्स एंड ऑस्फ्रेडिया आर ऑल्सो देयर सेंस ऑर्गन्स. ऑस्फ्रेडिया भी उनके सेंस ऑर्गन है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, वाटर के टेस्ट के लिए वो यूज़ करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट. दे आर मोस्टली ओवीपेरस, गिव बर्थ. दे ले एग ले करते हैं. ओवीपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. पता चल गया आपको. डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कि जैसा एडल्ट है वैसा ही उसका जो यंग वन है वो जैसा एडल्ट है वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग बॉर्न हुआ है, वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे ह्यूमन में होता है. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपने मेटामॉर्फोसिस में देखा कि एडल्ट डेवलप होने से पहले उसे डिफरेंट बॉडी शेप से गुजरना पड़ता है. ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का. सीपिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का. पाइला इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का. ऑयस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का, जहाँ से आपको पर्ल मिलते हैं, पर्ल ऑयस्टर, मोती मिलते हैं, है ना. सो देखिए यहाँ पे ये आपके एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था ये जो है आपका, ये क्या है? ये फुट है. ओके, मैंने आपको बताया था मूवमेंट इज बाय फुट. तो ये पूरा इनका फुट है. यहाँ ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज मेंटल विच सिक्रीट कैल्केरियस शेल, जो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती है और शेल बनाती है. ओके, दिस इज देयर मेंटल, ये ब्लू कलर से. और बीच का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज देयर विसरल मास. ये क्या है बेटा? इनका विसरल मास. ओके, नेक्स्ट आवर फाइलम इज अकाइनोडर्मेटा. अकाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मेटा मीन्स स्किन. अकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या हो गया? स्पाइनी स्किन, कांटेदार स्किन. सो दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में मिलते हैं, अकेले रहते हैं, फ्री लिविंग है, कॉलोनी में भी रह सकते हैं. रेडियल सिमेट्री है. मोस्टली आपने क्या पढ़ा था? आपने बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ा था. रेडियल सिमेट्री आपने बहुत कम में पढ़ी है. सो अकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है. ओके,
Their body are spherical, elongated और star shaped. Star shaped body से आप समझ गए होंगे. Starfish, again starfish is not a fish. Starfish कोई fish नहीं है. Starfish कौन से phylum को belong करती है? Echinodermata को. Okay. Their body does not have a well defined head. उनकी body में well defined head नहीं है, आप differentiate नहीं कर सकते. Spiny exoskeleton जो है वो calcareous plates का बना हुआ है. They have water vascular system. देखिए आपने पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था कि ऑस्टिया से जो वाटर है वो एंटर कर रहा है और वहाँ पे फिर फ्लो कर रहा है, कैविटी में फ्लो कर रहा है, तो वो वाटर कैनाल था कि कैनाल्स में वहाँ पे वो वाटर फ्लो कर रहा है. यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है. डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम रिपीटिंग अगेन. पॉरीफेरा है वाटर कैनाल सिस्टम, एकाइनोडर्मेटा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ओके. और वाटर वेस्कुलर किस में हेल्प करता है? उनके मूवमेंट में, लोकोमोशन में. ओके बेटा, तो पता चल गया. एकाइनोडर्मेटा कार्निवोर्स हैं जो मोलस्का पे फीड करते हैं. मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर आर्म्स और देयर 2 फीट्स. उनके 2 फीट्स में सकर प्रेजेंट है. ओके. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू है. सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रिड्यूस्ड है, ओपन टाइप है. हार्ट इज एब्सेंट. तो आपको देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में पढ़ा है आपने, है ना. बाकी सब में आप ओपन ही रीड कर रहे हैं. ओके. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. लार्वल स्टेजेस के थ्रू लार्वल स्टेजेस के थ्रू बाद गुजरना पड़ रहा है, फिर जाके एडल्ट आता है. आपको समझ में आ गया होगा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कैसे होता है. दे शो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. अगर स्टारफिश की आर्म कट हो गई सेंट्रल डिस्क के साथ तो वो रीजनरेट हो जाएगी. सो स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये देखिए सी कुकुम्बर खीरे जैसा है ना, एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है. ये स्टारफिश है. ओके. ये उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम को दिखाया हुआ है कि कैसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम में जो प्रेशर डेवलप होता है वो उसकी ट्यूब फीड्स को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके. ये यहाँ पे नर्वस सिस्टम दिखाया हुआ है स्टारफिश का. ये सेंट्रल नर्वस रिंग है उसकी. ओके. ये देखिए स्टारफिश स्टार शेप की है. एंड अवर लास्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा मीन्स हाफ कॉर्डेट. ओके. विच includes characteristics of chordates as well as non-chordate. तो हेमिकॉर्डेटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो आप इसको कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. They are exclusively marine animals which live at the bottom of the sea. They are free living. Their body is soft, fragile and segmented. Okay, their body is divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk. Buccal cavity give rise to a rod-like structure, जिसको हम क्या कहते हैं? notochord. Buccal cavity give rise to a rod-like structure and rod-like structure is notochord. They feed on microorganisms which are present in water. Alimentary canal complete है. Digestive system is complete. ओके. प्रोबोसिस जो है उनको बरो बनाने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू है. गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप है. ब्लड इज कलरलेस. यहाँ इनका ब्लड कैसा है? कलरलेस. ओके. सेक्सेस आर सेपरेट. मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. लार्वल फॉर्म है, उसके बाद एडल्ट आएगा. So this is the connecting link between chordates and non-chordates. Example are Balanoglossus and Secoglossus. So यहाँ पे आपकी किंगडम एनिमेलिया की फाइलम कंप्लीट होती हैं और अब आपकी लास्ट फाइलम बेटा chordata है. Okay, so chordata we are going to discuss in next class. Thank you class. Thank you so much.